Okay, the question is visible on your screen. Yes, sir. Okay, so just read the question number 26. Read it first. And just note down the given data. Okay, so here you can see, first of all, see the formula to solve this type of question using Gumbel's method. So in the previous class we have seen about this Gumbel's method. Okay, so this is the main formula. This is xt to find the peak discharge of any flood. So xt is equal to x mean, this is mean, plus k into a standard deviation. Okay, so mean, mean is mean, and a standard deviation, you know how to find it. Okay, however, in the most of the problem, this mean and a standard variation is given in the question. Now k, this k is called frequency factor, which is equal to yt, that is called reduced variate, minus yn bar divided by Sn. Okay, and where this yt is equal to, this reduced variate is equal to ln log t by t minus 1, where t is, t is what, t is the return period or recurrence interval, and t is equal to, if we write t in terms of p, then how to write t is equal to, hello, 1 hello, upon P, sir. correct, 1 about b, that is 1 by probability. So just write this formula on your notebook. Okay, we will in today's class we will solve most of the problem by using this formula only. Okay, so if in case of very large data or infinite number of data, yn and Sn is equal to this one, yn is equal to 0.577 and Sn is equal to 1.285. So remember this two data. Okay, and if in the question it is given for a particular number of year, or it will be given particular data, then yn and Sn will be given in most of the question. However, there is a table to find yn and Sn. So no need to remember all those numbers. Just remember only these two data, 0.577 and Sn is equal to 1.285 for a large data or for infinite number of data. Okay, so just you now tell me, this 940 meter cube per second is what? Hmm? X bar. X bar, that is mean x bar na. Okay, so this is the question. So here this 940, okay, 940 is what? 940 is the x bar, because it is written mean value and a standard deviation is 940 and 203 meter cube per second respectively. So we can write given data are is x bar, that is mean value is 940 meter cube per second. Now next data is given this 203, which is a standard deviation, sigma n minus 1 is equal to 203 meter cube per second. Now, what is the magnitude of a flood of return period of 500 years? It means 500 is what? T, T. sir. T. T, correct. Return period T. T, correct. That is 500 years. So, it is asking the magnitude of a flood of a return period 500 years in this stream. Okay. Assume the annual flood series follow Gumbel's distribution and the sample size is very large. Okay. So, very large means that the value of yn and Sn will be that whatever written in the previous this one. Okay, this yn bar equal to 0.577 and Sn is equal to 1.2825. Now, so the basic formula to find this magnitude of a flood is what? Xt is equal to X bar plus K sigma n xt minus 1. is equal to x bar plus k, K, sig. Sigma n minus 1. correct, sigma n minus 1. Okay, so x bar is given, sigma n minus 1 is also given. Okay, now
we need to find this frequency factor, which is equal to k is equal to what? K is equal to yt YT minus Y2 minus 0.577 by 1.2825. correct. So this is the basic formula, but in this question it is given, it is written that the sample size is very large. Okay, so what we will do, we will just write the yt minus yn is equal to what? 0.577 divided by sn. Sn is what? 1.2. 2825. Correct, this one. And yt is, how to find yt? Minus minus ln ln into into t upon ln t minus 1. Correct. Yt is equal to minus log t by t minus 1. And for this question, t is given minus ln t is what? 500 years, है ना? Yes, 500. So 500 divided by 500 minus 1, that is 499. 499. So just calculate the value of this one and tell me what's the value of yt. 6.21. 6.21. 6.21. Okay, good. 6.2136. Okay, this one. So yt comes, now we can find this k, है ना? So k will be what? So we can find this k. This k will be yt, that is 6.2136 will be, comes 6.2136 minus 0.577 divided by 1.2825. What's the value come? 4.4. 4.4, correct. 4.4, 4.395. Okay, so this is the value comes for k, है ना? तो अभी now we can find this xt. तो xt का वैल्यू क्या था? xt is what? x bar. So x bar is what? 940 plus k is what? 4.395 4.395 into sigma n minus 1, which is given 203. Okay, so tell me what's the value comes for this one? 1831.17. 18. 32.187. Correct. 32.185. This is the final value. Okay, this is your answer. Clear, Satyam? Yes, sir. Okay. Any doubt? किसी को कोई पूछना है इसमें? कोई टर्म नहीं समझ में आया? Anyone? Should we proceed for the next question, or is there any question? Yes, sir. Shambhavi? Clear. Okay. Poojan? Shravan? Shahil? Clear, sir. Okay, very good. Okay, now solve the question number 27, which is more or less the similar one. Okay, this is the similar one. Okay, mean value is given and this deviation is given, and this, what is the probability of a flood of magnitude of itna occurring in the river within next 5 years. Okay, so now actually we will use the same formula, but the approach will be some different. Okay, so okay, solve this one. Solve this one and tell me what's the answer come. Can anyone tell how to solve this type of problem and how we can solve this question? Amarjit? सर टी के टर्म में टी निकाल देंगे, वहां से फिर प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे. Correct. First of all, what is it asking? It is asking for probability of a flood of magnitude 1000 meter cube occurring within 5 years. Okay, so how to find the probability? So how to find the probability, or how to find? रिक्स. No. For the to find probability, we need two data. First of all, the return period, and the second, for number of which year it is asking. Okay, so it is asking for 5 years, so n will be 5, but we do not have the return period value.
So how we can find the return period? By using this mean value, standard deviation and xt. है कि नहीं? है ना? Yes. Yes. Okay. So first of all, see, uh, the this xt is equal to what? X bar plus k into sigma n minus 1. Okay. Now xt is what? xt is 600 meter second per cube. xt is 600 meter cube per second. Cube No sir, XT नहीं XT नहीं, 1000 So का है। 1000 है. 1000. Correct. Now x bar is mean, which is 600 600. plus k. We do not know this frequency vector. Sigma n minus 1 is given, that is 150. Correct. So what will be k? You can find from this equation. K will be 2.6 बार 6 to the power recording है ना. तो ये रेकॉर्डिंग नहीं लिखते ना यहाँ पर सत्यम, क्या लिखते हैं? 2.67 2.67. correct. Okay. Now k is equal to 2.67 and we know k is equal to what? K is equal to YT minus YN minus upon YN. SN. yt minus SN. yn bar divided by sn is equal to 2.67. Now see, yn and sn is given or not. What is written in the question regarding this yn and sn? It is written that sample size is too very large, so we will use the standard value of this yn, which is 577 0.577. correct. Divided by sn is what? 1.2825. Correct. Is equal to 2.67. Now solve it and tell me what's the value of yt is. 3.997. 3.997. So 4.001. Yes, 4.001 001,275. This is the value of yt. Okay. Now after yt, we can write yt as what? Minus ln log ln. 3 upon T Correct. minus 1. Minus is equal to minus a log of t by t minus 1, है ना, is equal to what? 4.001275. Now tell me how to find t. Do you know? By using calculator. log उधर जाएगा तो क्या, सबसे पहले तो माइनस इधर आएगा, है ना. उसके बाद अगर log को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? e to the power. करेक्ट. to the power. तो सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं? इसको पता है ना सबको या मुझे बताना होगा? यस सर पता है। ओके. तो ये माइनस सबसे पहले उधर चला जाएगा, उसके बाद ln को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? e टू द पावर माइनस दिस वन. ओके. तो जो वैल्यू आएगा वो फिर से क्या हो जाएगा, एक बार और ln को ले जाएंगे तो e टू द पावर फिर से वो आंसर आ जाएगा, है ना. और उसके बाद एक इक्वेशन आएगा t के टर्म में और फाइंड कर लेंगे हम t. तो बताओ कोई फाइंड कर पाया अभी तक t? अच्छा, t बाई t माइनस वन बताओ क्या आया? सर 1.01. 1.184. 1.184. 0.184. ओके. अब तो पता चल जाएगा. 1.018. हाँ सर, जीरो छूट गया था। ठीक है. हाँ. तो t इज इक्वल टू व्हाट? 55 ईयर्स. यही आ रहा है ना सबका? देखो. So now we have the value of return period, that is t. So in the question it is asking about the probability of occurrence of this flood within next 5 years. Okay. So how to find, Pankaj? Pankaj Kumar Verma? Yes, sir. One minus q to the power. Okay. So we can write probability of occurrence, na? Probability of occurrence within 5 years, within next 5. Hello. हाँ हाँ सुन रहे हैं. within next 1 minus q to the power n, sir. Q non occurrence, sir. is equal to what? 1 minus 1 by t, where t is what? 55 to the power n. n is 5. So the value is what? Calculate करो, मुझे बताओ कितना आया?
So 0.087. 0.087. Okay, 87. So 88. Yes, sir. Uh, 466 over. so this is the probability. Okay, so we can write it in percentage also. 8.766%. करेक्ट? सभी को समझ में आ Yes, गया ये sir. क्वेश्चन? ओके, सभी को समझ में आ गया सत्यम? यस सर। ओके, सो जस्ट एक बार देख लो इसका सॉल्यूशन फिर से, कैसे कैसे किए देख लो एक बार। सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया हमने? के के बाद हमें क्या आ गया? वाई टी के बाद क्या आ गया? टी, और टी आ गया तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लिए, है ना? ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 28। इसमें देखो क्या क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है? डेटा कवरिंग ऑफ अ पीरियड ऑफ 92 इयर्स फॉर द रिवर गंगा एट रायवाला, है ना? तो यहाँ पे 92 इयर्स का डेटा है, ओके, और मीन वैल्यू और स्टैंडर्ड डिविएशन पता है, ठीक है? तो यूजिंग गंबल्स मेथड एस्टिमेट द फ्लड डिस्चार्ज विद अ रिटर्न पीरियड ऑफ 500 इयर्स। तो ये तो आ जाएगा, ये फर्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन का वो तो सब इजिली फाइंड कर पाएंगे। बताओ कितना आएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर? सॉल्व सभी के पास कैलकुलेटर है ना? I hope you all Yes, sir. are having the calculator, okay, with you. So just solve the first part of this question. Find this flood discharge for a return period of 500 years. Okay, 92 years के लिए देखो YN और SN का वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं? XT के लिए हमें XN चाहिए, K चाहिए और सिग्मा N-1 चाहिए, है ना? तो XT और स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। नेक्स्ट, find the K, that is frequency factor. So for finding frequency factor we need what? YT, okay, and for YT we need what? How to find this YT? टी T, सर so ए correct, T is given. So first of all start with the YT, okay, so YT is equal to minus ln LA T by T minus 1, that is 500 by 499, correct? तो इसका वैल्यू बताओ क्या आएगा? 6.21. अभी कुछ देर पहले क्या? 6.21. करेक्ट, 21361 है ना, इतना आएगा। उसके बाद के हम फाइंड कर लेते हैं। तो वाई टी फॉर्मूला तो लिखने की जरूरत नहीं है बार बार ना, अभी फॉर्मूला लिखा हमने पहले, देखो ये 0.70. है ना, देखो फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है? हाउएवर तुम लोग जब असाइनमेंट करोगे तो फॉर्मूला बार बार लिखोगे, इससे क्या होगा? फॉर्मूला याद हो जाएगा आप लोग को, ठीक है? जितने बार क्वेश्चन प्रैक्टिस Yes. करेंगे ना फॉर्मूला उतने बार लिखेंगे, उससे क्या होगा कि आप लोग को याद करने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है? याद हो जाएगा अपने आप को जितने बार सर प्रैक्टिस। हाँ सर वहाँ 500 क्यों होगा सर? 92 होगा ना? नहीं, ये डेटा है आपको, देखिए ये आपके पास जो डेटा है 92 इयर्स का डेटा है आपके पास, ठीक है? लेकिन हमें फाइंड करना है 500 इयर्स के लिए इवेंट, ठीक है? तो डेटा तो हो सकता है 92 का भी हो सकता है, 90 डेटा हो सकता है 50 डेटा को ही लेके आप यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो जितना कम डेटा रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जो एरर होगा उतना ज्यादा हो सकेगा, हो जाएगा, ठीक है? तो एरर कैसे फाइंड करते हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है? तो देखिए हम लोग जो अभी प्रॉब्लम जितना भी कर रहे हैं, ये जो एक्स मीन और एसएन स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल रहा है, ये कैसे निकाल रहा है? पिछले कुछ ईयर्स का डेटा लेके निकाल रहा है ना? तो यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट के लिए हमारे पास 92 इयर्स का डेटा है ना? उसको हम यूज करके ये वैल्यू फाइंड कर किए हैं, ठीक है? लेकिन हमें रिटर्न पीरियड 500 का चाहिए हमें, ठीक है? तो जो कोई एक ऐसा इवेंट है जो हमें पता है कि उसका रिटर्न पीरियड 500 है, तो ये 500 इयर्स और ये 92 ईयर, ये दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, ओके स्वाति? यस सर। ठीक है, तो ये जो 92 सर इयर्स, हाँ सत्यम, सर इसीलिए तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन बोला गया। करेक्ट, इसीलिए तो हम क्योंकि जो भी हम हमारे पास जो भी ये जो एक्स मीन और एक्स ये स्टैंडर्ड डिविएशन जो भी हम फाइंड कर रहे हैं वो कुछ ईयर्स का प्रीवियस डेटा लेके ही फाइंड कर रहे हैं।
तो इसीलिए तो देखो ये सब जो है ये क्या है, पूरा तो प्रोबेबिलिटी ही है ना। देखो यहाँ पे जो भी यूज कर रहे हैं हम, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन, है ना। तो ये सब क्या है हमारे पास, पिछले कुछ ईयर्स का डेटा है, उसी को यूज करके हम नेक्स्ट जो इवेंट है उसका हम फाइंड कर रहे हैं फ्लड डिस्चार्ज। करेक्ट। तो ये हमेशा याद रखना, ये 92 और ये 500 दोनों डिफरेंट है। ओके, दोनों इंडिपेंडेंट है अपने से, है ना। जब भी हम, हाँ, और जब भी हम ये जो वैल्यू लिखते हैं ना, रिड्यूस्ड वेरिएट का आपका मीन या स्टैंडर्ड डिविएशन, ओके, तो ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग लिखते हैं बताओ, रिटर्न पीरियड या ये गिवन डेटा? गिवन डेटा। करेक्ट है ना। तो जब भी ये YN और SN का जब भी वैल्यू लेंगे तो हम जो गिवन डेटा है ना हमारे पास, उसी के अकॉर्डिंगली लेते हैं। ओके, नाउ YT हमारे पास आ गया। अभी K का वैल्यू बताओ क्या होता है, K का फॉर्मूला YT दैट इज 6.21361 माइनस YN बार दैट इज 0.5586। 389 अच्छा, एक कोशिश करना, ये जब भी क्वेश्चन ये सब सॉल्व कर रहे हो ना प्रोबेबिलिटी या गम्बल्स मेथड का, तो पॉइंट के 4 प्लेस तक डेटा लेना है, ठीक है। कम से कम 4 प्लेस तक हमको डेटा लेना है, ठीक है। जब भी हम ये लिखेंगे ना पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद 4 प्लेस तक हम डेटा लेंगे, लिखेंगे। उससे क्या होगा, जो एरर आएगा ना हमारा कैलकुलेशन में वो थोड़ा कम आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, हाँ ओके। नाउ SN क्या है हमारे पास, 2020 1.2020, ठीक है। तो K का वैल्यू बताओ तो क्या है? 4.7047। 4.7044 अरे पीछे से कौन बोल रहा है, 5? करेक्ट, दिस इज द सब वैल्यू ऑफ मेरा आया 5.7488। ओके। सारथी, निधि कौन? निधि सिंह, ओके। सो नहीं, K का वैल्यू इतना आएगा, आप फिर से कैलकुलेशन कीजिए, K का वैल्यू इतना आएगा, ठीक है। फिर से आप सॉल्व कीजिए कैलकुलेटर से, देखिए आ रहा है या नहीं आ रहा है, और नहीं आएगा तो मुझे फिर से बोलिएगा, ठीक है। तो YT आ गया हमारे पास, K आ गया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, टू फाइंड द this flood discharge, that is XT, by using which formula, X bar plus K into a standard deviation. Correct. So X bar is what, mean value, mean is given 6437 okay, plus K का वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 4.7044 इंटू क्या है, 2951 दैट इज क्या है, ये 2951 क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका वैल्यू बताओ क्या है हमारे पास, 20,320.4। 20,320 करेक्ट, 20320 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो अभी हमने क्या बोला कि ये जो 92 ईयर्स का है, मान लो हमारे पास 40 ईयर्स का डेटा होता है, या मान लो हमें 200 ईयर्स का डेटा होता है ना। तो ये तो क्या है, प्रोबेबिलिटी है, ये मीन ले रहे हैं हम, स्टैंडर्ड डिविएशन ले रहा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि ये जो हमारा जो पीक फ्लड डिस्चार्ज आ रहा है ना, इट माइट बी कि दैट डिस्चार्ज और दैट वैल्यू हैव सम एरर, ओके, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी पे चल रहा है, ठीक है। तो और ये मीन और कुछ हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन ले रहे हैं, ठीक है, प्रीवियस डेटा को हम यूज कर रहे हैं। तो इट माइट बी दैट वॉट एवर द वैल्यू विल कम फॉर दिस पीक फ्लड डिस्चार्ज, दिस माइट बी हैव सम error, okay. So now what we can do, we can define this error, okay, and we can find this error, okay, and we can uh, just write this flood discharge between a range, okay, which is called confidence limit, okay. So first of all understand what is confidence limit. confidence limit, okay. The first part of question is solved, this यहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है ना। नेक्स्ट पार्ट में देखिए क्या आ रहा है, 95% और 80% कॉन्फिडेंस लिमिट के लिए हमें वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये कॉन्फिडेंस लिमिट क्या होता है। कॉन्फिडेंस लिमिट्स, ओके। कॉन्फिडेंस का मतलब ही समझ में आ रहा है, कॉन्फिडेंस, ओके ना, कि आप हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट फॉर अ थिंग, है ना। मान लो हम सपोज आई जस्ट तमंग से हम पूछ रहे हैं, ठीक है, कि व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, हाउ मच CGPA यू विल गेट दिस सेमेस्टर, ओके। तमंग जस्ट आंसर, Yes, sir. हाउ मच CGPA you are मतलब you think that how much CGPA you will get, Sir, above 8. above 8 means 8 to 10, okay, okay. So how much you are confident that you will be have 8 to 10, how much percentage, in percentage, if I ask how much percentage you are confident that you will
have this CGPA 8 to 10? So 70%. 70% you are confident. Okay. Suppose I will give you that range 6 to or 7 to 10, that this is the range, and tell me now how much you are confident that you will get the CGPA between this 7 to 10. So 80%. 80%. Okay. Now I am saying that you may get 5 to 10. Okay. So how much confident you are? So 100%. Okay, no, just say Okay, like 95%. 99% suppose. Okay, but when I tell you that you will get 0 to 10 CGPA, then you can say that you are 100% confident. Okay, so okay, no issue. You can also say that you are 100% confident that you will get 5 to 10 CGPA. Okay, you are 100% confident. Now from this data you can think that you can understand that if this confidence limit is increasing, it means the range is also increasing. Get it? Everyone clear? Satyam, Yes, Nidhi, sir. Shambhavi, just say yes or no, everyone. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. करेक्ट. सभी को समझ में आ गया ना? तो अभी अभी ये क्लियर हो गया कॉन्फिडेंस लिमिट क्या है? ये किसी भी चीज का है ना, कोई भी डेटा मान लो ये यहाँ पे जैसे ये जो फ्लड डिस्चार्ज आएगा 2032, तो ये एक एग्जैक्ट है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम स्प्लिट कर देंगे दो रेंज में. ठीक है ना, उस कोई रेंज में स्प्लिट कर देंगे और हम बोलेंगे कि हाँ हम 100% श्योर है, या हमारा कॉन्फिडेंस लिमिट 90% है, 80% है, 70% है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम जो 2030 ये जो हमारा टर्म है ये तो एक एग्जैक्ट नंबर आ गया कि पीक फ्लड डिस्चार्ज हमारा ये हो सकता है. लेकिन हम क्या करेंगे, हम थोड़ा एश्योरिटी के लिए हमें कॉन्फिडेंस लिमिट हमने क्या कर दिया, एक डिफाइन कर दिया. ठीक है, एक नया टर्म कॉन्फिडेंस लिमिट डिफाइन कर दिया, ताकि हम बोल सकेंगे कि नो आई एम 80% श्योर दैट आई विल हैव द CGPA 7 to 10 और इन द रेंज बिटवीन 7 and 10. करेक्ट? सो इस ये जो डेटा है हमारे पास 2320, इसके लिए हम फिर से अब कॉन्फिडेंस लिमिट निकालेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हाँ अभी क्या, अच्छा ये कॉन्फिडेंस लिमिट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कुछ. ठीक है, आप फॉर्मूला लिख लीजिए कॉन्फिडेंस लिमिट के लिए. तो कॉन्फिडेंस लिमिट के लिए बताओ वैल्यू जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, दो वैल्यू आएगा ना, मतलब एक रेंज आएगा ना हमारे पास, तो दो वैल्यू आएगा, तो वी कैन राइट x12 मतलब x1 and x2 इज इक्वल टू xt प्लस माइनस fc into se, where se is the probable error, where se is the probable error. Okay, and it can be find as se is equal to b into a standard deviation minus root over whatever the data you have. Data means number of this value, number of data. Correct? Now b is what? This b is equal to, b is further defined as is equal to 1 plus 1.3 k plus 1.1 k square. Okay, and where k is what? K, you know, k is what? K is frequency factor. Frequency factor. Okay, so just write down this formula, and sigma n1 minus 1 is, you know, this is what? This is the standard The deviation, standard deviation. and n is what? N is the number of this data, matlab sample size, you can say sample size. So this is the very important formula. Okay, so now xt पता है हमें इस अगर now if we talk about this question, now xt, the value of xt is given है ना, xt हमने फाइंड कर लिया, this one. ac कैसे फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूला से, b इंटू सिग्मा n माइनस वन बाई रूट ओवर n, वेयर सिग्मा n वन माइनस वन तो पता ही है हमें, क्वेश्चन में गिवन है, n भी क्वेश्चन में गिवन है. b कैसे फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूला से, एंड
for finding B we need the value of K which is already found है ना इस क्वेश्चन में। तो B का भी वैल्यू आ गया, वहां से AC का वैल्यू आ जाएगा और AC का वैल्यू हम इस पे रख देंगे। ठीक है, अभी ये जो FC है ना हमारे पास FC, ओके, FC इज द फंक्शन ऑफ द कॉन्फिडेंस प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और ये FC का जो वैल्यू है, ठीक है, FC का जो वैल्यू है हमारे पास, FC का जो वैल्यू है वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, यू कैन राइट FC C in percent, C मतलब कॉन्फिडेंस लिमिट परसेंट, ओके, एंड FC okay. Suppose if we have the confidence limit or this is 50%, 68%, 80, 90, 95, 99, okay. So for 50 the value is 0.674, for 68 that is value 1.00, for 80 1.282, 1.645, for 90, and for 95 1.96, and finally for 99% this is 2.8, okay. तो ये आप लिख लीजिए। ठीक है, दिख रहा है ना सभी को ये? इज इट विजिबल? Yes, sir, visible. ओके, ठीक है। तो अभी ये जो डेटा है वो डेटा क्या होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा? बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, है ना। तो इसलिए इस डेटा को भी आपको क्या करना होगा, इस डेटा को भी आपको सत्यम क्या करना होगा, याद करना होगा। करेक्ट, है ना, याद करना होगा। ठीक है, तो इस जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसमें काफी सारा डेटा है जिसको याद करना पड़ेगा, और आई होप दैट यू ऑल विल रिमेम्बर दिस ऑल दिस डेटा, ओके। हालांकि कुछ जो मोस्टली यूज्ड है ना वो 95 के लिए पूछता है, 90 80 के लिए जनरली पूछते हैं, याद हो जाएगा। आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना तो याद हो जाएगा। तो अभी हम इस प्रॉब्लम के लिए अगर आते हैं वापस, जस्ट बैक टू दिस प्रॉब्लम नाउ। सर हाँ अगर 65% के लिए पूछ दिया तो इंटरपोलेशन करेंगे क्या? हाँ, करेंगे तो इंटरपोलेशन, लेकिन यहाँ पे जो ये जो डेटा है ना ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड डेटा है। ठीक है, मोर और लेस इसी के लिए आपको पूछेगा, लेकिन अगर ऑब्वियसली 65 या किसी और के लिए भी करेगा तो यू विल हैव टू गो फॉर इंटरपोलेशन। तो फिर तो सर हम 50 और 99 का याद कर लेते और सबको इंटरपोलेशन से निकालते। नहीं ना, नहीं, उसके लिए नहीं होगा ना। ठीक है, इसीलिए तो ये 50 68 ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। ठीक है, इसके लिए भी अगर 50 और 68 के बीच अगर इंटरपोलेशन करेंगे तो जो डेटा आएगा ना वो भी डेटा मतलब करेक्ट नहीं होगा, अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं उसको, क्योंकि इसके फाइंडिंग के लिए एफसी जो फाइंड किया ना ये अलग मेथड से ही फाइंड किया है। ठीक है, जो कि अभी ठीक फिलहाल है हमें सर। नहीं पढ़ना है। ठीक है, और यस मोर और सर। लेस इन द मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू विल गेट फॉर पर्टिकुलर दिस, इसी सब के लिए आपको फाइंड करना होगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में देखो क्या है, 95 और 80 के लिए, करेक्ट। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या करना है, एक्सटी हमें पता है ना, और एसी पहले फाइंड करना है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एसी, ओके। तो हाउ टू फाइंड एसी, बताओ। So first find B. फर्स्ट फाइंड बी, ओके। तो फर्स्ट फाइंड बी, सो बी इज इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस 1.3 के। के का वैल्यू कितना है बताओ, के का 6.2136। कितना, 6.2136। 4. ओके। नहीं सर 4.70 4.7046. सत्यम डरना नहीं है ये सब डेटा देख के, ठीक है ना। वो वाइट ही है। हाँ, डरना नहीं है जितना याद होता है उतना याद करना है,
जितना नहीं याद होता है उसको भी याद करना है, ठीक है, डरना नहीं है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, नहीं तो फिर यही होगा जो अभी आपने किया, ठीक है ना। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करो, बताओ कि क्या है वैल्यू। 5.5247 5.6091 6091 ना, 6091 91 yes sir करेक्ट, ठीक है। तो अभी प्रोबेबल एरर निकाल लो अब, AC इज इक्वल टू व्हाट, बी पता है 5.6091 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन तो क्वेश्चन में गिवन ही है, कितना है बताओ सत्यम। अच्छा कोई बात नहीं, साहिल नहीं, साहिल 2051 2051 सिग्मा n माइनस 1 2051 9 है सर, वो जूम करना पड़ता हाँ है, मोबाइल में नहीं दिखता ही नहीं है ओके ओके मुझे लगा तुम अभी भी लगता है डर ही गए सब डेटा देख के, है ना। सर। 29 ऊपर नीचे हो जाता है, जूम करना पड़ता है बहुत ज्यादा। अच्छा 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 ओके 2951 डिवाइड बाय रूट ओवर n, तो n क्या है बताओ। 92 92 92 ईयर्स, ठीक है। तो एसी का वैल्यू बताओ तो मुझे कितना है। अच्छा जो लोग, मैं जब क्वेश्चन पूछता हूँ 172 ना तो जस्ट सभी कोई पार्टिसिपेट कीजिए, है ना, सभी कोई सॉल्व कीजिए। मुझे बहुत सारा का नाम याद नहीं है ना, इसीलिए मैं सबको नाम नहीं बुला पाता हूँ, ठीक है। तो जिसका नाम नहीं बुलाता हूँ वो भी आप बताया कीजिए कि एसी का वैल्यू कितना आया। नमूना कुमार, यस सर। एसी का वैल्यू क्या आया बताओ। सर वो थोड़ा मेरा बी का वैल्यू अलग आया था सर, 5.0377, उसके अकॉर्डिंग सर 1549 आया था। क्या निकाला था तुम 5.0377 आया था बी का वैल्यू सर। ओके ओके गलत आ गया ना, वो 5.6091 है, ठीक है। नहीं सर, वो ऊपर मैंने के का वैल्यू थोड़ा सा अच्छा अप्रोक्सीमेट। के का वैल्यू ही अप्रोक्सीमेट ले लिया था। अच्छा अच्छा हाँ, इसीलिए मैंने बोला ना कि वेन एवर यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ना, जब भी ऐसा डेटा आएगा ना, तो देखो यहाँ पे भी वाई एन एस एन क्या है, 4 प्लेस तक दिया हुआ है ना, है ना। अगर आपके यस पास सर। बहुत ज्यादा टाइम है और आपके पास बहुत पेशेंस है अगर, तो आप 6 7 8 डेटा तक भी ले सकते हैं, ठीक है, जितना कैलकुलेटर में आए। लेकिन ऐसा नहीं, आपको 4 प्लेस तक ही लेना है, ठीक है, 4 और ठीक है 5, मैक्सिमम 5, उसके बाद ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बताओ एसी का वैल्यू कितना है, एनीवन सॉल्व किया किसी ने। 179.9179 नहीं निधि क्या बोला, 17 17 मैंने नहीं बोला, 1725.71 मेरा आया 1725.71 71 ओके 26 7126 yes तो 7126 करेक्ट ओके 712634 ओके ठीक है ठीक है ठीक है, मेरा चार आया चार था। फोर प्लेस तक ही, ओके। सो दिस इज योर probable Yes error, sir. okay। Now put this probable error in this equation, the basic equation to find this x12, okay। So what is x12, that is x12 is equal to what, xt is what, whatever we have calculated, 20320 20320 plus minus what, fc which is FC का वैल्यू 1.96 एफसी का वैल्यू हमने फाइंड किया, हाँ एफसी का वैल्यू फाइंड तो नहीं करना, वो तो याद करना है। 711 हाँ तो देखो 95% के लिए 1.96 है, ठीक है, 1.96 करेक्ट, इनटू एस ई दैट इज प्रोबेबिलिटी जो हमने अभी फाइंड किया 1725.7126, है ना। ये इसके बाद जरूरी नहीं है ये 4 डेटा लिखना, ठीक है। इसके बाद आपको वो मतलब कोई बहुत ज्यादा एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जब प्रोबेबल एरर लिखे ना तो इसको आप पॉइंट के बाद नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है ना। ये पॉइंट कहाँ पे लिखना है, ये बी के लिए, के लिए, वाई टी के लिए, है ना, यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब हम एस सी लिख रहे हैं या x12 लिख रहे हैं या एक्स टी लिख रहे हैं ना, तब पॉइंट के बाद आप नहीं भी लिखेंगे ना तो चलेगा, ठीक है। वो राउंड ऑफ फिगर आप पूरा ये इसमें ही कर दीजिए, पॉइंट के बाद लिखने का जरूरत ही नहीं है। अच्छा अब बताओ एक्स टी का वैल्यू क्या आया, x1 और x2 का वैल्यू क्या आया, इसको प्लस माइनस है, इसको कैलकुलेट करो तो बताओ मुझे क्या आया। सर। x1 आया 23702 एक पॉइंट सेकंड एक सेकंड, समथिंग आ जाएगा। पॉइंट के बाद बोलो, वो राउंड फिगर करके बोलो, 2370 सर पॉइंट 2.96 समथिंग आएगा। नहीं राउंड फिगर पॉइंट तक ही बोलना, 23 23703 ना, yes sir ओके। एंड यस एंड सर। एंड नेक्स्ट yes वैल्यू क्या है, sir नेक्स्ट वैल्यू 16937.6 937.6 0.6, तो yes इसको sir 8 8 लिख देते हैं, है ना।
ठीक है। हम्म, तो यस ये सर। आ गया आपका कॉन्फिडेंस लिमिट। ठीक है, तो हम क्या बोल सकेंगे कि वी आर 95% कॉन्फिडेंट दैट द वैल्यू ऑफ दिस पीक फ्लड दिस फ्लड डिस्चार्ज विल कम बिटवीन दिस 23703 एंड 16938 और इन द रेंज ऑफ दिस वन 23703 और एंड 16938। क्लियर? सो दिस वाज फॉर हाउ मच? फॉर 95% ना, फॉर 95% कॉन्फिडेंस लिमिट, है ना। तो इसी तरह 80% के लिए भी फाइंड कर लेंगे ना। Yes, sir. ओके, तो बताने की जरूरत नहीं है ना मुझे। Yes. ओके, अच्छा इसके बाद कोई क्लास है आपका? यस सर। ओके Yes, sir. Yes, Nilanjan sir. sir. ओके ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा जल्दी क्योंकि ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर ये 29 भी देखिए, ये भी इजी है। ठीक है, ये इजी है। अभी अच्छा जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन को और मुझे बताइए कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको। नहीं समझ में आया? हेलो, यस सर, हो जाएगा सर। कैसे करेंगे बताइए। सर XT निकाल लेंगे, उसके बाद वही सर जो रेंज है 90% में वो निकाल देंगे सर नहीं फॉर्मूले नहीं, से। क्वेश्चन नंबर 29 पूछ रहा हूँ मैं, इसमें तो कॉन्फिडेंस लिमिट है ही नहीं कुछ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। सर 90% जो Sir, दिया हुआ है सर 90. 29। अरे हाँ बताओ कैसे क्या करेंगे। सर 90% है ना सर कॉन्फिडेंस लिमिट। अरे नहीं बाबू, ये कॉन्फिडेंस लिमिट नहीं है ये 90%। क्वेश्चन कॉन्फिडेंस लिमिट और ये रिलायबिलिटी में थोड़ा ना डिफरेंट है, डिफरेंस है। कॉन्फिडेंस लिमिट बताता है आपको कि क्या रेंज के बीच में बताता है। ठीक है, और ये एश्योरेंस है, 90% एश्योरेंस बताएगा आपको क्या, रिटर्न पीरियड। फिर तो सर वहां से टी निकाल के फ्लड निकाल करेक्ट, लेंगे। ये तो 90। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एस्टिमेट द डिजाइन फ्लड ऑफ ए स्ट्रक्चर ऑन द रिवर टू प्रोवाइड 90% एश्योरेंस दैट द स्ट्रक्चर विल नॉट फेल इन द नेक्स्ट 50 इयर्स। ये तो रिटर्न पीरियड के बारे में बता रहा है। तो 90% एश्योरेंस है मतलब रिलायबिलिटी 90% है ना। तो रिलायबिलिटी मतलब 90% मतलब 0.9 प्रोबेबिलिटी है सर इज इक्वल टू 0.9। 1 टी माइनस, निकाल देंगे। करेक्ट, 1 माइनस 1 बाई टी टू द पावर एन। एन क्या हो जाएगा 50 ईयर्स, तो वहां से हम टी 50 निकाल years. लेंगे। टी आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, रिड्यूस्ड वाई टी आ जाएगा हमारे पास, और वाई टी आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, के टी आ जाएगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और के टी आ जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स टी आ जाएगा, है ना, क्योंकि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। क्लियर? सर हाँ बोलिए सर सत्य। हाँ सर कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि अगर फेल वर्ड होगा तो वो रिटर्न पीरियड से रिलेटेड हो नहीं नहीं और ऐसे नहीं रिलायबिलिटी या नहीं रिस्क। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो तुमको पूरा सेंटेंस पढ़ना है ना, पूरा सेंटेंस पढ़ देखो क्या लिखा है। एस्टिमेट द डिजाइन फ्लड ऑफ स्ट्रक्चर ऑन द रिवर टू प्रोवाइड 90% एश्योर है कि दैट द स्ट्रक्चर विल नॉट फेल इन 50 इयर्स, है ना। और ये कॉन्फिडेंस लिमिट में बोल देगा कि अब 95% कॉन्फिडेंस लिमिट है कि यही वाला एस्टिमेट आएगा, है ना, कि ये एस्टिमेट निकालना है उसके लिए। ठीक है, तो ये 90% एश्योर है फेल के लिए, तो आपको समझ में आ रहा है कि मोटा मोटी बोल सकते हैं सत्यम कि फेल का वर्ड अगर समझना है तो आप बोल सकते हैं कि फेल, ये पास फेल का अगर बात हो रहा होगा तो समझ जाइए कि ये पास और फेल का है ना, और वो कॉन्फिडेंस लिमिट है। ठीक है, तो पास फेल का जब बात हो रहा होगा तो ये वाला टर्म आ जाएगा, लेकिन वो पूरा सेंटेंस पढ़ना होगा। ठीक है, तो 29 30 सर एक। हाँ, तो वो कॉन्फिडेंस जो है वो एरर हुआ या प्रोबेबिलिटी हुआ? कॉन्फिडेंस लिमिट आपको बता रहा है एरर के बारे में कि हम जैसे हम भी बताए ना तमंग का, मान लो वो 90% श्योर थी कि उसका सीजीपीए 9 to 10 आएगा। ठीक है, लेकिन उसका सीजीपीए तो 8 भी आ सकता है ना, तो वो 10% श्योर नहीं है कि वो 8 आएगा। लेकिन वो अब हम बोल रहे हैं कि ये तमंग को 90% तमंग ये है मतलब श्योर है कि वो पास होगी ये इस एग्जाम में। ठीक है, लेकिन 10% है कि वो सीजीपीए ही उसका नहीं आया, मतलब वो फेल हो जाए। ठीक है ना। मतलब सर जैसा सर्वेइंग टू में कहा जा रहा है वेट उस टाइप का। सरफेइंग टू में क्या पढ़ाया जा रहा तो मुझे नहीं पता एक सत्यम, है ना। सर वो एक वेट होता है ना कि हाँ मेरे वेटेज, बोलता सब बोलता है ना कि हाँ तुम्हारे बात में वजन है। हाँ करेक्ट, वेटेज, है ना। तो वही वेटेज ही कॉन्फिडेंस लिमिट बोल सकते हैं आप कि हाँ, जैसे सत्यम ने बोला कि हाँ ही विल 100% श्योर, ही इज 100% श्योर दैट ही विल गेट
he'll get 9.5 CGPA this semester. Okay, आ जाएगा ना 9.5 CGPA आपका? नो सर। अच्छा, मतलब आप पूरा 0% कॉन्फिडेंट है आप? कितना परसेंट कॉन्फिडेंस लिमिट है आपका कि 9.5 और 10 के बीच आए CGPA आपका? 10%। अच्छा, ये तो कुछ अजीब ही हो गया। चलिए, तो ये फिर आ गया आपका, वो पता है क्या, ये आ गया फिर आपका वो पास फेल वाला प्रोबेबिलिटी आ गया, ठीक है ना, एकदम फेल इवेंट हो ही जाएगा वो वाला। However, now comes to the question. 29, 30 and 31 is the similar one. Okay, by using the basic formula you will get the answer. अच्छा, एक्चुअली टाइम नहीं है ना, इसीलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दिस वन 32, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेकिन इसका जो ट्रेडिशनल मेथड है ना, जो लेंदी है, तो एक पेज में उसका सॉल्यूशन जाएगा, थोड़ा लेंदी भी है, ठीक है। लेकिन इसके अगेंस्ट एक शॉर्ट ट्रिक भी है, वो हम शॉर्ट ट्रिक भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हाउएवर द टाइम इज नॉट परमिटिंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन, so we will solve or discuss this question in the next class. Okay, however, you just try to solve question number 32 if you can, then try to solve it and find the shortcut. Okay, if you find any shortcut to solve this question, just let me know in the next class. Clear? Any doubt regarding up to this one? अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, काफी कम क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाए ना, 3 ही क्वेश्चन सॉल्व किए, तो कोई डाउट इसमें? सत्यम, निधि, No, शांभवी, sir. तमंग, धीरज, No, शांति? sir. Clear. No, sir. No, sir. No, Okay, sir. okay, this No, sir. Shilu, Bou, Yes, sir. clear everything or any doubt? Pankaj Verma? Yes, sir. Clear. Okay, very No good, sir, no doubt sir. very good. Okay, so keep studying and keep solving, just keep practicing all the questions and try to solve whenever you complete any topic. Na, try to solve the previous year question which is being asked in ES, GATE, SSC or any standard exam or any exams. Okay. Okay, so thank you for Yes, sir. today's class. Thank you. Thank you, sir. Hmm. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Sir.